Hello students, today we are going to discuss how to find the inverse of the given matrix. Okay, so there are two methods to find the inverse of the given matrix. First one is method 1 is adjoint method and second one is by elementary transformation. Again, we know that the elementary transformation means there are two methods. That is, first one is a row transformation and second one is column transformation. Now, first we will find inverse by using adjoint method. So, if A is equal to Aij, order is m by n, is a non-singular matrix, that is, determinant A is not equal to 0, then inverse of the given matrix A is given by A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. This is the formula to find the inverse of the given matrix by using adjoint method. So what is the condition? That A should be a square matrix whose order is m by m and it is a non-singular matrix. So last lecture we have studied what is a non-singular matrix. A matrix is called as a non-singular if its determinant is non-zero. अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द रूल्स टू फाइंड द एडजॉइंट? सो दिस इज द मेथड A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Okay, now first whatever is the given matrix, you have to find the inverse of that given matrix. So put your value and find the adjoint of the given matrix. Adjoint of the given matrix. So how to find the adjoint of the given matrix? In 11th class we know that how to find the inverse or how to find the adjoint of the given determinant. Okay, so there is in 11th standard we have find how to find the minus and cofactor of the given elements in the given determinant. Okay, now suppose this is the given matrix. A is equal to, these are the elements A11, A12, A21 and A22. This is suppose 2 by 2 matrix. This is the general matrix I have taken. So here is A matrix is given. Now how to find the adjoint of the given matrix? I am discussing about the methods to find the adjoint of the given matrix and then we will find the inverse of that given matrix. So suppose A is equal to A11, A12, A21 and A22. So these are the elements. ये जो है क्या है, इसके अंदर के elements है. A11 मतलब first row, first column. A12 means first row, second column. A2 means second row, first column, and A22 means second row, second column. Okay. Now we have to find the adjoint. So method first क्या है, इनके माइनर्स निकालने, जो एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट के हमें क्या करना है, पहले माइनर फाइंड करने हैं. सो हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स? नाउ ये माइनर फाइंड करना है. देखो, माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू A11 का माइनर निकालना है. तो माइनर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसका ए एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो ये A11 कौन से रो और कौन से कॉलम में है तो वो देखना पड़ेगा. ओके, सो A11 जो है ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, तो कौन सा एलिमेंट रहता है? A22 रहेगा. अगर ए फर्स्ट रो A11 फाइंड करना है मतलब फर्स्ट ये जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में है वो स्किप करना है, बाकी जो एलिमेंट देखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है. सो माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय कैपिटल M11 and this is equal to, तो कौन सा एलिमेंट रहता है? A22. दिस इज द माइनर ऑफ A11. तो A11 का ये क्या हो गया? माइनर हो गया. ओके, सिमिलरली व्हाट इज द माइनर ऑफ A12? A12 का माइनर क्या होगा फिर? A12 कहां पे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में. जस्ट स्किप दिस. अगर ये मैंने स्किप कर दिया तो कौन सा एलिमेंट रहेगा फिर? A12. तो माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू कौन सा आएगा फिर? कौन सा एलिमेंट रहेगा? A21. ये और ये छोड़ दो तो रहता कौन सा है? यही रहता है A21. ओके, दिस इज द माइनर. नाउ व्हाट इज द माइनर ऑफ A21? अभी A21 का माइनर निकालना है. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट जो रो और कॉलम में आता है उसको जस्ट स्किप कर दो.
आपको माइनर आ जाएगा। तो ये रो और ये कॉलम मैंने स्किप कर दिया, तो रहता है कौन सा, A12। सो M12 इज इक्वल टू कौन सा आएगा, सॉरी M21 इज इक्वल टू A12। ओके, एंड लास्ट वन इज माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू, दिस इज माइनर ऑफ M22, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसका माइनर। सो माइनर M22 इज इक्वल टू, M22 कहां पे, यहां पे, तो ये और ये स्किप कर दो, जस्ट कौन सा एलिमेंट रहेगा, A11। सो राइट हियर A11। सो दिस इज द माइनर। अभी माइनर आने के बाद क्या करना है, इनके कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ, पहला जो माइनर है, कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर निकालना है हमें, इस A एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A11। अभी A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो उसके लिए मेथड क्या है, क्या फार्मूला है, -1 रेज़ टू पावर, जनरल फार्मूला मैं पहले आपको बोलता हूं, कोफैक्टर ऑफ Aij, फिर चाहे जो भी एलिमेंट हो, कोफैक्टर ऑफ Aij, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है Aij। फिर यहाँ पे A11 होगा, A12, A21, A22, A23, व्हाटएवर में भी, ठीक है, जो भी रहेगा उसका कोफैक्टर निकाला। तो जनरल फार्मूला क्या है, -1 रेज़ टू पावर, -1 रेज़ टू पावर, ये जो Ij है इन दोनों की एडिशन करनी है यहाँ पे, सो रेज़ टू पावर I प्लस j इनटू दैट माइनर Mij। So this is the cofactor of the given element Aij, मतलब कोई भी एलिमेंट का ये क्या है, कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर कैसा फाइंड करना है, Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर, ये I प्लस j दोनों की एडिशन करनी है यहाँ पे, इनटू Mij, ठीक है। जस्ट अभी डिस्कस करेंगे कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। सो व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ, फर्स्ट कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर, क्या आएगा 1 प्लस 1 इंटू जो भी माइनर आएगा यहाँ पे M11, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। कोफैक्टर ऑफ A12 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू, A12 का कोफैक्टर -1 रेज़ टू पावर, इन दोनों की क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करनी है, 1 प्लस 2 और इंटू में क्या आएगा ये M12 एंड सो ऑन लाइक दिस। ऐसे चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, 3x3 हो, 4x4 हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहने दो, उसके हम क्या कर सकते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब ये माइनर और कोफैक्टर आने के बाद, ठीक है, तो बाद में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल, सपोज दिस कोफैक्टर ऑफ A, जो भी कोफैक्टर आया है, सपोज कोफैक्टर ऑफ A11, आई विल राइट हियर कैपिटल A11, ठीक है। A11 जो भी है वो मैंने कैपिटल A11 लिख दिया, ये कैलकुलेशन जो भी आएगा उसको A11 लिख दिया है। बाद में कोफैक्टर ऑफ A12, सपोज दिस इज A12, बाद में आएगा यहाँ पे A21, A22, these are the cofactors of the given elements। गिवन एलिमेंट्स के क्या है, कोफैक्टर है, और इसका क्या लेना है, जस्ट ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज तो आपको पता है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम क्या करने हैं, बस इंटरचेंज करने हैं, तो क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। गेट इट अगेन, ओके। शॉर्ट में बताता हूं फिर से एक बार। पहले क्या करना है, हर एक एलिमेंट का क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करने के बाद उनका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला है Aij is equal to -1 raised to power I plus j into Mij। ओके, सो दीज आर द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ये कैपिटल A11, कैपिटल ऐसा लिख सकते हैं हम, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, ये दीज आर द कोफैक्टर्स। ओके, सो कोफैक्टर जो भी आएंगे उनका क्या करना है, वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स बोले तो फिर ट्रांसपोज नहीं निकालना है। अगर आपको एडजॉइंट पूछा है तो अगर आपको एडजॉइंट पूछा है तो फिर आपको उसका क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है।
ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल टेक some another example, and we will more discuss by taking the example to find the adjoint. Now we will discuss from exercise 2.2 question first. Find the cofactors of the elements of the following matrix. Cofactor of the elements find करने हैं बस. Okay. How to find the cofactor of the elements of the given matrix? Okay. Now this is very simple question. Suppose let this is the given matrix A. A is equal to, here is -1, 2, -3 and 4. We have to find the cofactor of the elements. Elements find करने, कोई मैट्रिक्स नहीं फाइंड करना है. Okay. Now कोफैक्टर फाइंड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पहले उन एलिमेंट के माइनर निकालने पड़ेंगे. सो माइनर कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी बोला था. नाउ माइनर ऑफ, डायरेक्ट लिखेंगे हम, ये लिखने की जरूरत नहीं. लेट नाउ m11 का मीनिंग ये होता है कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर ये हमने स्किप कर दिया तो कौन सा एलिमेंट रहेगा, 4 ही रहेगा. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया तो ये माइनर हो गया. माइनर कौन से एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ये जो एलिमेंट है इसका हमें क्या करना है, माइनर निकालना है. ये अगर स्किप कर दिया तो क्या कौन सा एलिमेंट रहेगा, 4. सो दिस इज द m11. व्हाट इज m12? m12 क्या आएगा, m12 कहां पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो कौन सा एलिमेंट रहता है, -3. सो दिस इज द माइनर ऑफ m12. बाद में m21, इसका माइनर क्या आएगा, m21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. कहां पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ये स्किप कर दिया तो कौन सा एलिमेंट रहता है, 2. दिस इज द 2. एंड व्हाट इज m22 इज इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना पड़ेगा तो कौन सा एलिमेंट रहता है, -1. दीज आर द माइनर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, नाउ कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोफैक्टर्स and A11 is equal to, these are the cofactors of the given matrix, given elements. So A11 is equal to, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसका कोफैक्टर निकालना है. तो कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया था, क्या था, -1. A11 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा, 1 + 1. अगर I और J में रहता है जनरल, सो I + J into m11. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो A11 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, 1 + 1 into माइनर m11. नाउ कैलकुलेट दिस वन. सो -1 + 1 कितना है, 2 into माइनर कितना आया था हमारा, m11 कितना है, 4 है. सो दिस इज 4. सो व्हाट इज A11? A11 क्या आता है फिर, A11 -1 का पावर, अगर ये इवन नंबर है, -1 का पावर कितना भी बड़ा रहने दो, 100 रहने दो, 200 रहने दो, कोई भी इवन नंबर अगर है, -1 इवन नंबर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर -1 ऑड नंबर है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1. मतलब इसके वैल्यू कभी भी +1 या तो -1 ही आने वाली है, बस साइन चेंज होगा. तो -1 है, तो -1 पर -1 मींस 1 into 4, दिस इज 4. दिस इज द A11. मतलब ये कोफैक्टर हो गया कौन से एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट का ये कोफैक्टर हो गया. अभी नेक्स्ट कोफैक्टर फाइंड करना है. सिमिलरली A12 क्या होगा, A12 देखो -1 + 2 into m12. दिस इज इक्वल टू, सो -1 + 2 कितना होता है, -3 होता है. ठीक है, ये 12 कहाँ आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो m12 का माइनर हमने निकाला है, कितना है, -3 है. ओके, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी. सो ये -1 ये 3 into m12 कितना आ गया था, -3.
सो दिस इज माइनस। सो -1 का पावर, अभी ये कैसा है, ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। -1 इंटू -3 कितना होगा, +3। -1 इंटू -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है हमें a21, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट a21। a21 का कोफैक्टर फार्मूला क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू m21, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर, ये 2 + 1 कितना हो गया, फिर से ये 3 हो गया, और m12 कितना हो गया, m21 इज 2, सो दिस इज 2। -1 का पावर फिर से 3 है, मतलब ये फिर ऑड नंबर होगा। -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -2। और लास्ट एलिमेंट है कोफैक्टर, दैट इज a22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू m22, दिस इज इक्वल टू, सो -1 रेज़ टू पावर, ये कितना गया, 2 + 2 कितना है, 4, और m22 कितना गया था हमारा, माइनर ऑफ द सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट का माइनर -1 आया था, तो दिस इज -1। सो -1 रेज़ टू पावर, ये कैसा हो गया, 4 कैसा है, फिर से ये इवन नंबर है, सो -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू -4 कितना हुआ है, -1, सो दिस इज -1। ये हो गए हमारे क्या, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। ये जो मैट्रिक्स था, ये एलिमेंट के सब क्या हो गए, ये कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स हो गए। अभी आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स आर, पहला कितना आ गया 4, बाद में कितना है 3, नेक्स्ट वन इज -2 और नेक्स्ट वन इज -1। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। If we have to find cofactor of the elements की जगह पे अगर cofactor of the matrix अगर हमें पूछा जाता है, find cofactor of the matrix, बस ऐसे क्या करना है, मैट्रिक्स में लिखना है, therefore cofactor of the matrix, cofactors of the matrix is, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला कितना आया था 4, बाद में कितना है 3, -2, -1, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, दैट इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग adjoint method. Now here we have to find the inverse of the given matrix by using adjoint method. अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर, उसके कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, बाद में कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इनवर्स फाइंड करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग adjoint method। तो adjoint method दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड है ये इनवर्स फाइंड करने के लिए। ओके, सो इनवर्स फाइंड कैसा करना है भाई, इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड, सो लेट सपोज कंसीडर दिस मैट्रिक्स इज A is equal to -1 5 -3 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन। कंडीशन क्या है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स में, उसका डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, सो फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट आएगा ये -2 इंटू 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले -2 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू -3 -15, ये माइनस और ये प्लस, दिस इज +15। सो 15 minus 2, this is equal to 13 and which is a non-zero, ये जीरो नहीं है, मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, मतलब हमें इसका अभी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि पहले एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कौन से मेथड्स है, पहले उनका माइनर निकालना पड़ेगा, बाद में कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज।
ये 4 स्टेप से जाना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एडजॉइंट आ गया तो हमारा इनवर्स भी आ ही जाएगा। तो पहले इनका माइनर फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट अगेन लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स -1 5 -3 2। आप डायरेक्टली इसका कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो पहले हम इसका माइनर निकालेंगे। m11 इज इक्वल टू m11 कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर स्किप कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर स्किप कर दिया तो कौन सा एलिमेंट रहेगा, 2। ओके, m12 में कौन सा एलिमेंट आएगा, m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप कर दिया तो क्या रहेगा, -3। ओके, व्हाट इज m21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया तो क्या रहेगा, 5। ओके, एंड m22 क्या आएगा, m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम के स्किप किया तो -1। गेट इट, दिस इज द माइनर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर। दिस इज अगेन सिंपलेस्ट वन। सो कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर फाइंड करने तो हमें क्या करना पड़ेगा, A11 फाइंड करने पड़ेगा। ठीक है, A11 फाइंड करना है। A11 का फार्मूला मैंने बोला था -1 + 1 + 1 -1 + 1 इनटू जो माइनर आया था वही एलिमेंट का m11 का हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज 2, दिस इज इक्वल टू -1 + 1 + 1 इज 2 इनटू 2। ये कितना होगा फिर, -1 का पावर इवन नंबर है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 इनटू 2 कितना होगा, 2। ओके, नाउ व्हाट इज A12, A12 कितना आएगा, -1 * 1 + 2 इनटू A12 का माइनर कितना आएगा, -3। यहाँ पे कितना आएगा फिर, -3। दिस इज इक्वल टू -1 * 1 + 2 कितना होगा, 3 इनटू ये -3। इसकी वैल्यू -1 का पावर फिर से कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव इनटू दिस नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये माइनस +3। नेक्स्ट वन इज A21 इज इक्वल टू -1 * 2 + 1 इनटू A21 कितना आया था हमारा, 5 आया था। सो राइट डाउन हियर 5। दिस इज इक्वल टू -1 * 2 + 1 मतलब ये 3 हो गया, -1 * 2 + 1 3। -1 का पावर ऑड नंबर मतलब ये माइनस हो गया, -1 इनटू 5 दैट इज -5। और लास्ट इज A22 इज इक्वल टू -1 * 2 + 2 इनटू m22 कितना आ गया था, -2। ये माइनर है तो यहाँ पे माइनर लिखना पड़ेगा, दैट इज -1। दिस इज इक्वल टू, अभी -1 का पावर कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। 2 + 2 4, ये हो गया इवन नंबर। तो -1 का पावर 4 है तो यह वैल्यू कितना है, 1 इनटू -1 कितना होगा, दैट इज -1। बस ये माइनर और कोफैक्टर में क्या होता है, बस कुछ एलिमेंट्स के साइन चेंज, अगर -1 ऑड नंबर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर -1 अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। नाउ एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्टकट में लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो हमने कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स निकाले थे उनका क्या करना है, ट्रांसपोज मिलना है। तो A11 कितना आ गया था, पहले 2 आ गया था, बाद में कितना है 3, ये फिर -5 -1, और इसका ट्रांसपोज ये कभी भी भूलना नहीं है, डोंट मिस दिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एडजॉइंट निकालते हैं लेकिन ट्रांसपोज नहीं लेते, तो ट्रांसपोज भी हमें लेना है, तभी हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलने वाला है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स एंड whose ट्रांसपोज टेकन। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा फिर, तो एडजॉइंट ऑफ A, सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम बस इंटरचेंज करना होता है। सो 2 3 -5 -1, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A। ये एडजॉइंट हो गया। अभी हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है इसका। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड इनवर्स। सो वी नो दैट द फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। Just put the values here. So therefore
A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया था 13 आ गया था, सो दिस इज 1/13 इनटू एडजॉइंट कितना आ गया था इसका, जो एडजॉइंट आया वही वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, दिस इज 2 -5 3 -1, so this is the inverse of the given matrix by using adjoint method. यही मेथड है, यही सब हमें क्या करना है, यही स्टेप्स 3/3 में भी यूज करनी है। अगर ये 2/2 का है तो सिमिलरली वी कैन यूज द स्टेप्स टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग adjoint method in 3/3. A is equal to 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 and we have to find the inverse of this matrix by using adjoint method. वही मेथड यूज करनी है, बस ये 3/3 का एग्जांपल है। तो पहले हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन इनवर्स एग्जिस्ट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ये फाइंड करना है, सो 1 इनटू ब्रैकेट, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले A एलिमेंट और बाकी 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। कितना आता है ये, -1 इनटू 3 -3, 2 इनटू 0 -0, फिर -0 इनटू समथिंग 0 प्लस 0 इनटू समथिंग बाद में 0। तो डिटर्मिनेंट ये कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ये -3 व्हिच इज अ नॉन जीरो, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। सो इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो अभी क्या करना है, इसके हमें माइनस फाइंड करने हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड माइनस। तो पहले m11 निकालेंगे। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे अच्छा है। तो m11 कैसे फाइंड करना है, देखो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें स्किप करना है, तो जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, कौन से रहते हैं फिर एलिमेंट, m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर स्किप किया तो ये 4 एलिमेंट दिखते हैं, सो 3 0 2 -1 3 0 2 -1, so 3 into -1 -3 -2 into 0 is 0, this is equal to -3। ये हो गया m11। नाउ इनका कोफैक्टर डायरेक्ट निकालेंगे। कोफैक्टर क्या आएगा इसका, सो a11 is equal to -1 raised to power, ये 1 + 1 कितना आ गया 2, और ये माइनर कितना आया था -3, दिस इज इक्वल टू -1 का पावर 2 into -3, ये हो गया माइनस, दिस इज द a11, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ द a11। नाउ m12 फाइंड करेंगे। m12 इज इक्वल टू, m12 कितना आएगा, देखो m12 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये स्किप करना है। डिटरमिनेंट में क्या दिखेगा फिर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे यहाँ पे 3 0 5 -1, सो दिस इज इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट -1 into 3 -3 -5 into 0 0, दिस इज इक्वल टू अगेन -3। इसका कोफैक्टर निकालना है, a12 इज इक्वल टू कोफैक्टर -1 raised to power 1 + 2 that is 3 into माइनर कितना आया था हमारा -3, दिस इज इक्वल टू -1 का पावर 3 है, ऑड नंबर है मतलब -1 into -3, दिस इज +3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे तो ये 4 एलिमेंट दिखेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, 3 5 2, so this is equal to, so 2 3s are 6 minus, so 3 5s are 15, 6 minus 15, this is -9। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, a13 is equal to -1 raised to power 1 + 3 is 4 into माइनर कितना है -9, तो -1 का पावर 4 है, दैट इज इवन नंबर, सो 1 into -9 कितना होगा, ये -9 as it is। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये हो गया हमारे फर्स्ट रो के माइनर एंड कोफैक्टर। सिमिलरली हमें थर्ड नेक्स्ट भी फाइंड करना है, सो दिस इज m21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकाला तो क्या हो जाएगा, m21 देखो m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये स्किप करना है, तो ये 2 और ये 2 एलिमेंट रहते हैं, ठीक है, इनका डिटरमिनेंट लेना है। -1 into 0 कितना हो गया -1 और 2 into 0 0,
सो ये 0 माइनस 0 कितना आता है, 0 ही आता है। फिर से चेक करेंगे एक बार, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, 8 to 1 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इज 3 इंटू माइनर कितना आएगा 0, तो 0 इंटू यूनिट नंबर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन इज m22 फाइंड करेंगे, m22 कितना है, देखो m22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहेंगे तो कॉर्नर वाले 4 एलिमेंट रहेंगे, इनका डिटरमिनेंट लेना है। इनका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 इंटू -1, यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिखता हूँ एक बार, सो दिस इज 1 0 5 -1, तो इसका डिटरमिनेंट -1 और 5 इंटू 0 कितना होगा, 0, दिस इज -1। इसका कोफैक्टर a22 इज इक्वल टू कितना आएगा, a22 दिस इज -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू माइनर कितना है -1, तो -1 का पावर 2 + 2 कितना होगा, 4, 4 इज द इवन नंबर, सो 1 इंटू -1 दिस इज अगेन -1। ओके, नेक्स्ट वन इज m22 हो गया, तो बाद में m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम लेना है हमें, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम लिया तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 0 5 2, दिस इज 1 0 5 2, so this is equal to 2 into 1 2 minus 5 into 0 0, this is equal to 2। अभी इसका कोफैक्टर a23 is equal to -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 is 5 into माइनर कितना आ गया था 2, so -1 रेज़ टू 5 कितना हो गया, -1 into 2 that is -2। बस साइन चेंज होगा, माइनर और कोफैक्टर आप जो भी ले रहे हैं, कोफैक्टर को मैं हाईलाइट करता हूँ एक बार, क्योंकि इसका हमें बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखना है। These are the cofactor of the matrix। ठीक है, ये 6 एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो सेकंड रो के माइनर एंड कोफैक्टर। नाउ कम टू दिस थर्ड रो। थर्ड रो में पहला एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब m31 इज डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, m31 में ये रो और ये कॉलम स्किप करना पड़ेगा, तो ये चारों का डिटरमिनेंट ये 0 -0, तो ये डायरेक्ट 0 ही आएगा। ठीक है, तो a31 कितना आएगा, a31 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 इज 4, 4 इंटू दिस माइनर 0, मतलब 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट वन इज m32 इज इक्वल टू m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये अगर स्किप किया तो बाद में 1 0 3 0, ये भी 0 ही आने वाला है, 0 इंटू 1 0 और -3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो a32 कितना आएगा, फिर ये भी 0 ही आने वाला है, अगर माइनर 0 है तो कोफैक्टर में ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 is 5 into minor 0, that is again 0। now last one is m33, this is equal to m33, देखो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर दिया तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये 4 एलिमेंट 3 into 1 3 -0 कितना ऑलरेडी करना है, बस वेरी सिंपल ही है बच्चों। कैसे, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये स्किप कर दिया तो ये 4 एलिमेंट रहेंगे, इसका डिटरमिनेंट आपको लेना है 3 into 1 3 minus 3 into 0 0, 3 - 0 कितना हो गया, देखो 3 into 1 3 minus 3 into 0 0, so 3 - 0 कितना हो गया 0, तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा, ये 3 भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना, अगर माइनर 0 है तो कोफैक्टर भी क्या होगा, 0 ही आने वाला है। अभी हमें क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद इसका इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट कैसे देना है, देखो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स के वो पहले नंबर से सीरियली लिखेंगे, पहला कितना आया था -3, सो हियर इज -3, बाद में कितना आया था ये 3 और -9, 3 -9। नेक्स्ट वन इज सेकंड रो कितने कितना है, 0 -1 2, 0 -1 2, थर्ड रो कितना है थे 0 0 0, या हुए थे 0 0 0, और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। नाउ इसको मैं रब कर देता हूं, आप इसको पॉज करके
आपको नोटबुक पे क्या करना है, नोट डाउन करके लेना है, ठीक है। सो मैं इसको पहले रफ कर देता हूं। सो नेक्स्ट वन इज, अब इसका एडजॉइंट कितना आएगा देखो, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, पहला रो क्या करना है, पहले कॉलम में लिखना है, तो ट्रांसपोज बनेगा। ट्रांसपोज क्या है, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। तो कितना हो जाएगा, -3 3 -9, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, 0 -1 2 और ये 0 0 0। दिस इज द adjoint। नाउ वी हैव द फार्मूला टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग adjoint मेथड। सो A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में क्या है, adjoint ऑफ A, ठीक है। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू adjoint ऑफ A। डिटर्मिनेंट ये तो हमने निकाला था, कितना आया था हमारा, -3, ओके। सो हियर A इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 अपॉन -3 इनटू adjoint A, जब भी हमने निकाला था, दैट इज -3 0 0 3 -1 0 -9 2 0। अगर सभी नंबर को अगर ये नंबर से डिवाइड होता है तभी डिवाइड करना, अगर डिवाइड नहीं किया तो भी चलेगा, अगर डिवाइड किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ओके, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। थैंक यू।